for us. We should not be afraid to receive each day's surprise, whether it comes to its sorrow or its joy. It opens a new place in our heart. Well, today we have a lot of surprise to all of you present here. So get ready for today's orientation. I hope you all have joined us live. Keeping in mind the current pandemic situation and for the safety of the students, this was the best alternative we came up with. And kindly don't spam the YouTube and Facebook live chat. If anybody faces any issue, please kindly contact our President, Ms. Pooja Kumari, and Ms. Secretary, Ms. Mehal Sinha. वैसे आज के इस प्रोग्राम में है क्या? आज हमारे एनएसएस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है मुलाकात, जिसके थ्रू हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स एनएसएस के बारे में और कुछ जानेंगे। Okay, so all the freshers, your patience is over now. Get ready as we're going to start today's orientation in next few seconds. कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझे लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझे लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस स्वर्णिम नगरी को नमन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद महाविद्यालय की वैदिप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें जन्मी आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। मैं वटवृक्ष जिसकी छांव में ये विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय कुलपति महोदय को नमन करता हूँ। अपनी शिक्षा के जल से इस विद्यालय परिसर को सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। श्री अरविंद महाविद्यालय की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मी आपके सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस स्थान के कण कण में विद्यमान होकर इसकी दिव्यता में चाक चांद लगा रहा है। I saw my friend. And I, Aman Bhudoria. Today we have pleasure to be the host of this event. On the behalf of National Services Scheme, we extend a very sincere welcome to all of you present here in the orientation Mulaqat of National Services Scheme, Sri Aurobindo College of Session 2021-22. The main purpose of conducting today's function is to welcome our newly recruited volunteers in NSS atmosphere. By seeing them, I can say that we are delighted to have enthusiastic and energetic volunteers. Today is an auspicious day. No doubt that our NSS unit is expanding year by year. So I heartily congratulate to all the newly volunteers who came forward to take part in various community service programs and activities. Our NSS will give you much more. So get ready for all the adventures. उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत सत आकर्षण अरमानों को ठहरना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Let's start today's orientation with NSS song. The song which inspires us, which tells us to give selfless service to our society, which is our emotion that impresses the ideals of our movement. I request you all to watch up the video carefully, which will give you a much more idea of our NSS unit events conducted till now. I ask you all to support the invocation. I request our technical team to please play the same.
उठे जगेश्वरा शिवे सदैव सुंदरा सवारिते सदैव सुंदरा सवारिते सदैव सुंदरा सवारिते सदैव सुंदरा सवारिते सदैव सुंदरा सवारिते। Thank you so much, technical team. Thank you so much, technical team. वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अब मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे कर्मठ और कठिन परिश्रमी आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल जी का, जो कि हमारी एनएसएस यूनिट की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now, I would like to honor the person who always stand by us, direct us and inspire us. We have a dignified NSS program officer, Dr. Meenakshi Chaudhary. Thank you so much, ma'am, for always being with us. तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। As you all know that the great team is the secret behind every success. So our NSS unit core team comprises of a highly talented individual who put their heart and soul towards the fulfillment of objectives of NSS. With this, we have a president as Ms. Pooja Kumari. She is very gentle, humble and strong. I can say that we are lucky to have president like her. Next up, we have our vice president, Ms. Alia Arfin. She is known for her humility and kindness. We are also have our secretary, Ms. Mehal Sinha. By meeting her, you can inspire with her boldness and her high spirit. This is a core team who works hard in order to achieve all visions of our NSS unit. Luckily, our core team highlights women empowerment also. There is so much to learn from them. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. We all are NSS volunteers. We can't help everyone, but we do serve everyone. Well said, Aman. But how and what does it mean for NSS volunteers? राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा मामले और खेल विभाग के तहत एक भारतीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जिसका प्रमुख रूप से छात्रों में सामाजिक कार्य के माध्यम से राष्ट्रीय निर्माण में भागीदारी की भावना को विकसित करना होता है। Okay, so guys, get ready for all delight and excitement to acquaint our NSS unit. And for this, I would like to hand over my mic to our core team members. Thank you so much, anchors, and a very good morning to all of you. First, let me introduce myself. My name is Mehal Sinha, Secretary of NSS staff, and huge congratulations to all the newly recruited volunteers. तो आज का पीपीटी जो है हमें उसका रीजन ये है कि एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको यूजुअली पता नहीं होता है एनएसएस का बेसिक डिटेल्स, और कुछ वॉलंटियर्स को ये भी नहीं पता होगा कि एनएसएस का फुल फॉर्म भी क्या है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि एटलीस्ट वॉलंटियर्स को एनएसएस का बेसिक डिटेल्स तो मालूम होना चाहिए। ग्रुप में डीपी है, लोगो है, पर लोगो का मीनिंग क्या है ये तो हमें अभी भी बहुत सारे वॉलंटियर्स को आइडिया नहीं होगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द पीपीटी। Okay, let me introduce you guys to our internal supporters, and we will always be grateful to them for always supporting us. First, our principal sir, Professor Vipin Kumar Agarwal, NSS Program Officer, Dr. Meenakshi Chaudhary ma'am, our teacher coordinators, Mrs. Kalpita Sonewal, Dr. Seema Kumari, Dr. Neetu Dwivedi ma'am, Dr. Mukesh Kumar, Ms. Sonia Lohia, Mr. Avnish Yadav, Ms. Akriti Singh. Thank you so much to all the teachers and all the our principals for always supporting us. Next.
एंड आपको पता ही होना चाहिए टीम में सिर्फ 2 या 1 जन काम नहीं करते हैं, एक टीम है तो मतलब उसमें काफी लोग पीछे काम कर रहे हैं, अभी भी काफी लोग पीछे खड़े होकर काम कर रहे हैं. So let me introduce you to our team. As you know, first of all, our president, Ms. Pooja Kumari, our vice president, Ms. Alia Alfi, and secretary, that's me, Nehal. And other than that, all the behind the scene workers, senior executive Mohammad Nafiz Raza, executives Nandini Sharma, Arwa Kumar, Jatin Arora, Riya, our technical head Bharat Agarwal, and our content head Shreya Singh. Thank you so much to the team. अब जरा जाने NSS है क्या? National Services Scheme 24 September 1969 बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ महात्मा गांधी को इस्टेब्लिश हुआ था. 24 सितंबर हम एनएसएस डे भी मनाते हैं और इस साल भी मना था 52nd एनएसएस डे 2021. ओके, हाँ, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आवर देन एजुकेशन मिनिस्टर. हमारे तब के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर VKRB राव, उन्होंने 37 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग 4000 स्टूडेंट्स ये एस्टैब्लिश किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर S राधाकृष्णन. अब इसका एम क्या है, क्या एम लेके एनएसएस बना, क्या रीजन था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटियर्स थ्रू कम्युनिटी सर्विस. तो सबसे पहले तो वॉलंटियर्स जो हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी को सर्व करना बहुत जरूरी होता है. Just a second. एक सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी को सर्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं क्लास में जाके, बट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस थ्योरेटिकल नॉलेज से कितना होता है ये हमें भी पता है. तो इसका एम तो यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वॉलंटियर्स टू कम्युनिटी सर्विस. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी विद whom they work and live. तो हम to understand the society with whom they work or live. अभी हम एक as I said हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं और हम कितना सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को, किस तरीके से, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू अंडरस्टैंड आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव उनसे ज्यादा ही होती है, क्योंकि हम हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. टू अक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. एज यू कैन से वी हैव द टीम एंड ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग लीडर्स. तो हमें भी लीडरशिप क्वालिटीज एनएसएस के थ्रू ही मिली है, खुद से नहीं आई है, तो हमने भी यहीं से ही सीखा है. तो एनएसएस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज और एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सर्व करना लोगों को, ये सिखाया है. टू यूटिलाइज देयर नॉलेज इन फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. एज आई सेड, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें मिल ही जाता है ऑफ कोर्स, जो भी कॉलेज में है, क्लासेस में है, बट हम उस थ्योरेटिकल नॉलेज का लोगों को सर्व करके कैसे हेल्प करें, एज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें उससे, राइट? तो उसके लिए बहुत जरूरी एनएसएस बहुत ज्यादा ही एक पार्ट लेता है. टू डेवलप टीम वर्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारे एक टीम है, एज आई सेड कि अभी भी काफी लोग पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैं या फिर 2 या 3 जन नहीं काम कर रहे हैं, काफी लोग हैं, टेक्निकल चीजें हैंडल हो रही है, एवरीथिंग. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई है मुझे, our president and all the people who are working at the back, technical, decoration, everyone, right? तो हमने ये चीज सीखा है कि टीम वर्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना जरूरी है. नेक्स्ट, एनएसएस का मोटो नॉट मी बट यू. ये मोटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं जो भी अभी कर रहे हैं, तो ये मोटो हमेशा दिमाग में रख के कि नॉट मी बट यू, हमेशा अपने से पहले दूसरों को सर्व करना. NSS logo, as I said, हमारे DP में तो this picture of our group has NSS logo, but बहुत लोगों को अभी भी मीनिंग नहीं पता होगा. First let us know कि NSS logo का बेस क्या है. NSS logo कोणार्क सन टेम्पल जो ओडिशा में सिचुएटेड है, उसका पूरा उसका रथ है, उस पे बेस्ड है NSS logo and it has 8 bars. Next.
The navy blue color depicts what NSS is a part of, ready to contribute its share for welfare of mankind. Navy blue color ये depict करता है कि NSS हमेशा अपना contribution जो mankind और humankind के लिए देने के लिए ready है. The red color depicts blood of NSS volunteers, which is lively, energetic, active, and full of high spirit. Next, the wheel depicts the circle of life. That is the life cycle of creation, preservation, and release. Creation as in birth, preservation the way we are living right now, and release, that is death. Next. Major events. Right now we have completed 78 events in just 4 months, and let's get to know some major events. Book Bonanza. NSS in collaboration with We Citizen Foundation distributed storybooks to underprivileged students of adopted village Begumpur slum. हमारा adopted village है Begumpur slum. उनके बच्चों को वहाँ पे story books distribute हुई थी. Next. Okay. ये हर ईयर होता है स्वच्छता पखवाड़ा. NSS और ये स्वच्छ भारत मिशन का एजेंडा जो है उसको कैरी करने के लिए होता है, एंड इसमें हमने बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाई थी. नंबर 1 स्वच्छता प्लेज, क्लीनिनेस ड्राइव, ये यहीं पे हुआ था मालविया नगर में, एंड ट्री प्लांटेशन, प्लॉगिंग. पहले जान लीजिए प्लॉगिंग क्या है. प्लॉगिंग इज पिकिंग अप द गार्बेज व्हाइल जॉगिंग अलोंग विद इट. ओके. एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव, फ्रीडम रन. तो आजादी का अमृत महोत्सव हुआ था इस बार, एंड उसमें फ्रीडम रन 2.0 कंडक्ट किया गया था. टीचर्स और वॉलंटियर्स दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया और पैट्रियोटिक स्लोगन्स चैंट किए. एंड दिस इवेंट वाज आल्सो अटेंडेड बाय आवर प्रिंसिपल प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल. NSS Day, as I said, is when established हुआ था. Then the second NSS Day, 24 September, was by celebrate हुआ, and it was addressed by our prestigious chief guest, Professor Ashwani Mahajan, and Honorable Principal Professor Vipin Kumar Agarwal. And उस दिन बहुत सारी activities हुई थी. Poetry competition, dramatic show, dance performances, Hindi and English song performances. It was a really amazing event. Plogging run at Qutub Minar. अभी मैंने बताया plogging run, picking up the garbage while jogging with it, and ये in association with नेहरू युवा केंद्र के संगठन के साथ एसोसिएट होके हुआ था. कुतुब मीनार पे वॉलंटियर्स एंड जो टीचर्स थे उन्होंने कुतुब मीनार का सराउंडिंग जो भी प्लास्टिक या जो भी है उसको पिक करके गार्बेज में अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस किया था. कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव. ओके. यहाँ पे ये हुआ था बेगमपुर स्लम में जस्ट बिफोर दिवाली, विंटर क्लोथ्स का. ओके. एंड 450 प्लस आइटम्स कलेक्ट हुए थे इन जस्ट 2 days, एंड बेगमपुर स्लम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. इट वाज अ रियली सक्सेसफुल इवेंट. ओके, थैंक यू सो मच. तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी न्यूली जितने भी रिक्रूटेड वॉलंटियर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए. एंड आगे अभी प्रोजेक्ट्स हैं, एनएसएस रूल्स हैं, तो इसके बारे में आपको हमारी प्रेसिडेंट मिस पूजा कुमारी बताएगी. एंड आई वुड लाइक टू कॉल हिम. सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप सब लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लिया होगा, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं कर रही होगी. अगर अभी भी आप लोग कोई डिफिकल्टी है, मेहल को आप लोग मैसेज कर सकते हो. सिर्फ अभी मैं पोडियम पे बोल रही तो मैं आपके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाऊंगी. सो मेहल इज देयर, काइंडली ड्रॉप हर द मैसेज. एंड आई गेस मेहल ने काफी कुछ बता दिया एनएसएस के बारे में. एनएसएस का मोटो क्या है, एनएसएस की ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड एनएसएस के फुल फॉर्म क्या है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम पूजा कुमारी. हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटरेक्ट किया ही होगा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग फेस टू फेस देख रहे हैं. ऑब्वियसली आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आप लोग को नहीं देख पा रही होंगी, बट या जब आगे इवेंट्स होंगे we'll get the opportunity to meet you all, and yes, we are excited to conduct the events with the new freshers. तो मेहल ने आपको काफी कुछ एनएसएस के बारे में बता दिया है. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं या फिर जो उनका मैसेजेस आता है कि आई वांट टू ज्वाइन एनएसएस या हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए एनएसएस. तो लेट मी से कि एनएसएस ज्वाइन करने के लिए आई डोंट को रीजन चाहिए, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व द नेशन, एंड एनएसएस के थ्रू हम लोग अपना स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं टू सर्व द नेशन.
So this should be very clear in your mind. If you want to serve the nation, there should be no reason to join NSS. But still, अगर आप ये पूछोगे कि NSS ज्वाइन करने से हमें क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आई हैव द आंसर्स फॉर दिस. लाइक जब मैंने NSS ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में, तो आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्टिव. मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 इवेंट पूरे साल में आई होंगी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज NSS अबाउट. जिन जैसे मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, देन सेकेंड में मुझे NSS की नॉलेज मिली कि NSS से क्या कुछ हो सकता है, व्हाट द इंपॉर्टेंस इट होल्ड्स. लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करते हैं, आप ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स को अवेयर होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ NSS. देन सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड टू टेक एनफ पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड का सिचुएशन था, सो ऑनलाइन वाज ओनली पॉसिबिलिटीज. एंड देन आई स्टार्टेड टू लाइक जॉइन इवेंट्स, टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशंस एंड ऑल. फिर बीच में एक सिनेरियो आया था कोविड का, जिसमें लोगों काफी डेथ्स हो रही थी क्योंकि सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एंड देन बेड्स नहीं मिल पा रही थी. सो वी केम अप विद द आइडिया, द होल टीम, की व्हाई नॉट टू लाइक हेल्प देम इन एनी वे वी कुड. सो व्हाट वी केम अप विद द आइडिया, लाइक जिन्हें जरूरत होगी ऑक्सीजन गैसेस की या फिर बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की, तो हम एक प्लेटफॉर्म करते हैं. जिन्हें नीड है और हमें इंफॉर्मेशन पता है तो हम उन तक पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी की क्वेरी आती थी कि हाँ मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए कुछ, तो व्हाट वी डू इज हम लोग उस लीड को फिर सर्च करते कहाँ वो लीड किसके पास अवेलेबल है, फिर उनका नंबर उनके प्रोवाइड करा देते हैं. ऑलमोस्ट 106 कुछ केसेस आए होंगे हमारे पास, जिसे हम लोग काफी मैक्सिमम 95 प्लस हम लोगों ने सॉल्व किए थे. एंड यस, वो हमारा बिग अचीवमेंट था. वो कोविड वाले से काफी लोगों की हमने हेल्प कर पाई. बड़ी लार्ज अमाउंट में हम लोग नहीं की, लेकिन अपने साइड से हम जितना हो सके हम लोगों ने वो किया. और ऑल्सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वॉलंटियर्स को जो न्यूली रिक्रूट उन्हें NSS के फुल फॉर्म नहीं पता हो. आप लोग यहाँ देख सकते हैं नेशनल सर्विस स्कीम, इज नॉट नेशनल सोशल सर्विस. सो कीप दिस इन माइंड. NSS के फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट NSS मोटो, जैसे कि मेहल ने बताया, नॉट मी बट यू, मतलब अपने को छोड़ के सामने वाले को आगे रखना, उनकी हेल्प करना. सो दैट इज द मोटो व्हिच जस्टिफाइज आवर NSS वर्क, नॉट मी बट यू. सो नाउ कमिंग टू द PPT, हमारे NSS के अंदर प्रोजेक्ट्स है. प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कि हमारा NSS के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं, जो कि डिफरेंट एरिया में वो स्पेसिफाइड है कौन कहाँ किस फील्ड पे काम करेगा. सो पहले आप इस पे लुक देखो, आई होप कैमरा में जूम है वो दिख रहा होगा. 5 प्रोजेक्ट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज सहयोग एक पहल, नेक्स्ट इज किलकारी एक कदम. अभी एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. वी हील, वसुंधरा एंड एक्शन ऑन एडिक्शन. Next slide. So coming to the first project, which is किलकारी एक कदम. The project head is खुशी गुप्ता and project co-head is साहिल डागर. आप लोग इनसे मिलेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं. ये इवेंट्स में भी काफी आते हैं, तो आप लोग से इंटरेक्शन होगी इवेंट्स में. फिलहाल की अभी आप नेम्स जान लें, which is खुशी गुप्ता एंड साहिल डागर. किलकारी एक कदम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेहल ने अभी आपको बताया था कि अडॉप्टेड विलेज है. सो आप लोग को अडॉप्टेड विलेज का पहले मैं मतलब बता देती हूँ. जितने भी NSS यूनिट्स है कॉलेज के, सबने एक विलेज को अडॉप्ट कर रखा है. वो विलेज जहाँ पे NSS जाके वहां पे वर्क करेगी. तो हमारा एक अडॉप्टेड विलेज है, सबका एक ही अडॉप्टेड विलेज होता है. रीजन ये है कि अगर हम लोग 2-3 विलेज जाके उनकी कुछ हेल्प करते हैं और उसकी जगह अगर हम एक ही विलेज में बार बार जाके हेल्प करते हैं, तो सिचुएशन बिकम्स डिफरेंट. आप जो अपना एफर्ट्स को अलग अलग करोगे और एक जगह अपना फुल एफर्ट लगाओगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसलिए एक अडॉप्टेड विलेज हर NSS यूनिट की होती है. एंड हमारा अडॉप्टेड विलेज है बेगमपुर स्लम. यही सामने है, DDA पार्क से होते हुए रास्ता निकल जाता है. एंड हम लोगों ने बेगमपुर स्लम में काफी एक्टिविटीज कराई है. और किलकारी एक कदम जो है, जो वहाँ के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिन्हें एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाती है, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन की जरूरत होती है, तो NSS के कुछ बच्चे जाके DDA पार्क में जाके उन्हें पढ़ाते हैं. वीकली 2 क्लासेस होती हैं. अभी रेस्ट्रिक्शन के कारण अभी क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन वी विल कंटिन्यू अभी आगे जैसे रिडक्शन ठीक होती है. सो यस, उनसे काफी हेल्प हो जाती है ताकि उन्हें जो भी एजुकेशन में दिक्कत आ रही किसी वे में हम उनकी हेल्प कर सके. सो दिस वाज अबाउट आवर प्रोजेक्ट किलकारी एक कदम, जहां हम लोग जाके बेगमपुर स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं. नेक्स्ट, सहयोग एक पहल एंड द प्रोजेक्ट हेड इज खुशी अरोरा, को-हेड है अंजलि. प्रोजेक्ट सहयोग ये आप लोग को ऑफलाइन इवेंट्स में आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन वर्क करते हैं. एंड ये इतना अच्छा वर्क करते हैं, लिटरली जो भी स्पेशली एबल स्टूडेंट्स है,
आप लोग इनके वर्क को सामने से नहीं देख पाओगे, लोग बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को असाइनमेंट मिला है अपनी टीचर से या फिर कुछ टेस्ट मिला है, वो लोग नहीं उसे कर पा रहे हैं, सो व्हाट दे डू, दे मैसेज आवर वॉलंटियर्स एंड देन वॉलंटियर्स टेक द इनिशिएटिव, वो उनके बिहाफ पे एग्जाम्स देते हैं या फिर असाइनमेंट्स बना के उन्हें देते हैं या फिर टेस्ट उनके बैठ के सॉल्व करते हैं। सो सहयोग एक पहल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है जो हमारे कॉलेज में जो स्पेशली एबल स्टूडेंट्स है उन पे ये वर्क करती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव वी हील। ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है एंड प्रोजेक्ट हेड इज प्राक्षी गुप्ता एंड प्रोजेक्ट को हेड इज जूही कटरा। अब आई होप सो मैंने नेम में कोई गलती नहीं की, लेकिन तो कि जूही, दे आर रियली नाइस पीपल। उन्होंने काफी आके इवेंट्स कराते हैं एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा भी आके बाकी ऑफलाइन इवेंट्स में आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, विच इज वेरी इंप्रेसिव। एंड ये मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ, मेंटल हेल्थ पे ये काम करता है। लास्ट टाइम जैसे कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गया था, लोग मेंटली डिप्रेस हो रहे थे कि, तो इस पे हमें वर्क करना बहुत नेसेसरी लगा। सो वी केम अप विद दिस प्रोजेक्ट वी हील जो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। इस पे हम बेसिकली कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या कुछ अवेयरनेस ड्राइव्स कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं जिससे उनका मूड लाइटन हो एंड या उनसे हम लोग बातें करते हैं। जब भी वो परेशान है कुछ हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, किसी भी अपनी बात सुन के कुछ भी हम लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं थ्रू किसी हम लोग स्पेशली कुछ स्पेशल लाइक बाहर से लोगों को बुलाते हैं जो आके उन्हें समझाते हैं या कुछ एक्टिविटीज कराते हैं जिस किसी भी वे में हम उनके मेंटल हेल्थ पे कुछ सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट वी हील। नेक्स्ट अप वी हैव द प्रोजेक्ट वसुंधरा एंड द प्रोजेक्ट हेड इज अर्पिता कटरिया एंड प्रोजेक्ट को हेड इज आकांक्षा राजपूत। So what they do is they lead this project and इसमें हम लोग बेसिकली इको फ्रेंडली हमारा थीम रहता है। हम लोग जो भी है हम लोग इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग का कुछ इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है, लोग प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट रिलेटेड वो वैसे काम करते हैं जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा हो। सो व्हाट दे डू इज कि हम लोग इवेंट्स कराएंगे या एक्टिविटीज कराएंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को लेके कॉन्शियस होना चाहिए, बिकॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान रखना होगा। सो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं एंड इस वजह से नाम प्रोजेक्ट वसुंधरा। आप लोग पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, ये पिक्चर ये अवेयरनेस ड्राइव का जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, उन्होंने जो बचे हुए वो थे घर के जो यूजलेस मटेरियल्स होते हैं उस मटेरियल को यूज करके उन्होंने कैसे उसको एक डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं वो उन्होंने करके दिखाया था। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एक्शन एडिक्शन। ये लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट था, इनका नाम था टोबैको फ्री यूथ, जो कि सिर्फ टोबैको पे ये फोकस करता था कि जो टोबैको जो स्मोकिंग कंज्यूम कर रहे हैं या कुछ उनका जो यूथ है उनको ये बताए कि कैसे वो हमारे हेल्थ के लिए हजारियस होता है। पता सबको रहता है लेकिन स्टिल दे डू दैट। तो हमारा काम है कैसे हम लोग सेम एज जो भी है उनको कैसे समझा पाए कि आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट आपके पेरेंट्स पे पड़ेगा। अगर आपको कुछ होता है तो आपके पेरेंट्स को ज्यादा फिक्र होती थी। यही सब मिस हम लोग टोबैको फ्री यूथ से करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि सिर्फ एडिक्शन टोबैको का नहीं हो सकता है, ड्रग का हो सकता है या फिर सोशल मीडिया का, मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। सो इस एक्शन एडिक्शन पे जितने भी एडिक्शन जो होते हैं लोगों के उस पर हम लोग वर्क करते हैं ताकि उस पर हम लोग किसी वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए उनके एडिक्शन छुड़ाने में। एंड जैसे कि प्रोजेक्ट हेड है हिमांशी एंड प्रोजेक्ट को हेड है वैशाली साहू एंड these are some of the pictures. This is the picture that we conducted and नुक्कड़ नाटक in the बेगमपुर स्लम, जहाँ पे उन्होंने नुक्कड़ नाटक के थ्रू बताया कि कैसे एक स्टोरी डिपिक्ट की कि कैसे स्मोकिंग या टोबैको कंज्यूम करने से फैमिली इफेक्ट होती है। And the left picture is about they have made the posters and they are holding the posters in the public place which is the park and displaying the message of not to consume tobacco and what cancer is dangerous to health. So we come into the most important part which is NSS rules. The main purpose of this orientation is to explain you the NSS rules. Hello. So you can see the first which is hours and certificate. एक NSS वॉलंटियर को 120 आवर्स सर्व करने होते हैं या फिर 240 आवर्स। लाइक अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो अभी आप जब तक सेकेंड ईयर में नहीं जाते हो आपका वो 1 ईयर काउंट होगा, मीनिंग टू 120 आवर्स। इफ यू कंटिन्यू फॉर द 1 full year
एंड आप एक्टिव रहते हो इवेंट्स में, देन आपका 120 आवर्स काउंट होता है. एंड इफ यू विश टू कंटिन्यू इवन इन द सेकेंड ईयर, देन वो 120 कंटिन्यू होके प्लस 120, लाइक 120 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 120 इन द सेकेंड ईयर, सो इट बिकम्स 240 आवर्स. So if you want to receive the college certificate, तो आपको at least 120 hours complete करने होंगे. लेकिन अगर आप 240 hours complete करते हैं, then आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा. And let me say this कि this certificate helps you a lot in any job you go or the public sector में कहीं भी आप जाते हो government jobs में. So लेकिन एक but if you live in between the second year of the service, like अभी आप volunteer हो और अब बीच में भी आप छोड़ देते हो, then you can't say कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए. लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हो एंड देन सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन सेकेंड ईयर के बिटवीन में अगर आप छोड़ देते हो तो आपको एक भी सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होगी, ना ही फर्स्ट ईयर की जिसमें आपने 120 आवर्स कंप्लीट किए थे और ना ही ये सेकेंड ईयर की. तो इफ यू विश टू कंटिन्यू, फर्स्ट ईयर आप लोग पूरा करो, सेकेंड ईयर आपको करना है तो मेक द माइंड कि आपको बीच में नहीं छोड़ना है एनएसएस. अगर आप छोड़ते हो देन आपको 120 आवर्स के भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, ना ही 240 आवर्स के. So coming to the next rule, I hope this point is clear. Still कोई डाउट हो you can ask in the comment section. Political groups. पहले भी ग्रुप में मैंने सबसे स्टार्टिंग में मैसेज भेजा था कि आप लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी से काफी दूर रहनी है. यानी कि कोई भी एबीवीपी पार्टी हो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो या किसी ने कैंपेनिंग को अगर आप लोग प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर हमें इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ आप लोग, हमें बहुत से स्क्रीनशॉट्स हमें रिसीव होते हैं. बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरा नंबर ऐड नहीं करके अगर कुछ स्टेटस शेयर करते वो मुझे शो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली आई एम लीडिंग द ग्रुप, मुझे कहीं ना कहीं से वॉलंटियर्स के मैसेज आ जाते हैं कि ये बच्चा आपका पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन कर रखा है. सो आप लोग को अगर एनएसएस में हो तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है कॉलेज के. एंड अगर हमें इन्फॉर्मेशन आती है तो आप डायरेक्टली एक्सपेल हो जाओगे फॉर एनएसएस एंड नो एक्सक्यूजेस विल बी एंटरटेन्ड. दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि नॉट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल ग्रुप. Third is you have to make a clear choice between NSS, NCC और sports. Since sports की हमारे पास सोसाइटी है नहीं, तो हमारा दो क्लियर चॉइसेस दिख रहे हैं, NSS और NCC. तो आप अगर NSS में आ गए हो, मेक श्योर कि आप NCC कैंडिडेट ना हो. अगर आप NCC में हो, then please drop me a message after the live orientation because then आपको एक चॉइस करना है, या तो NSS या फिर NCC. If you are in NSS, then you can't be in NCC. So make this point very clear. अगर कोई भी हो तो kindly inform me. Next up we have the work diary. So ये work diary तभी आपको मिलती है जब आप 240 hours complete करते हो. Now what is this work diary? इस वर्क डायरी में आप लोगों ने जो जो इवेंट्स अटेंड किए हैं, फॉर एग्जांपल पहले की इवेंट्स में मेहल ने बताया कि हम लोग कुछ इवेंट्स कराए हैं, तो वो इवेंट्स आपके वर्क डायरी में इवेंट्स जाता है. सो अगर आप 240 आवर्स कंप्लीट करते हो देन ही आपको वर्क डायरी मिलेगी एंड उस वर्क डायरी के थ्रू ही आपको यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगी. नेक्स्ट अभी आप अटेंडेंस. तो अटेंडेंस के लिए आपको 75% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी द पार्ट ऑफ एनएसएस. ऐसा नहीं अगर 30 इवेंट्स हो रहे हैं एंड इफ यू आर ओनली टेकिंग पार्ट इन 2 इवेंट्स एंड देन यू से कि अगर आप मुझे ग्रुप से क्यों हटा रहे हो, आई थिंक यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप इनएक्टिव हो एंड दैट्स व्हाई अगर आप रिमूव होगे ग्रुप में. सो इवेंट्स अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हो रहा है, अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो इवेंट्स अटेंड, आप दिल्ली में नहीं हो कहीं बाहर रह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड कर रहे हो या फिर अगर प्रोजेक्ट्स में आप वॉलंटियर बन रहे हो, प्रोजेक्ट्स में अगर ऐड हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सहयोग एक पहल में ऐड होते हो, तो अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आपको सहयोग एक पहल में ऐड किया गया, तो आपको उनके असाइनमेंट्स करके, एग्जाम्स देके, टेस्ट देके आपको अपना अटेंडेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट के थ्रू हो या फिर ऑनलाइन इवेंट्स या फिर ऑफलाइन इवेंट्स. वी हैव द ऑप्शन फॉर एवरीवन हु आर इन दिल्ली और नॉट इन दिल्ली. Next up, always act in a professional manner in the group. No unnecessary messages will be entertained in the group. जैसे आप लोग एक ग्रुप बनेंगे, I know अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है इन द ग्रुप. ग्रुप में कोई भी स्पैमिंग नहीं करनी है, लाफिंग इमोजी नहीं भेजनी है या फिर कुछ भी इस तरह की इमोजी नहीं भेजनी है जो अनप्रोफेशनल लगे. सिंस अभी आप एक एनएसएस वॉलंटियर बन चुके हो, सो यू नोट टू नो कि कैसे आपको डिसिप्लिन वे में बिहेव करना है एंड ग्रुप में जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही मैसेज करिए. कुछ क्वेरीज है, इनबॉक्स द कोटिंग मी, मेहर, आलम, किसी को भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, बट डोंट स्पैम द ग्रुप. नेक्स्ट इज
हम लोग इन्हें पहले ही बताया था कि अब आप एक एनएसएस वॉलंटियर बन चुके हो, तो हमारा एनएसएस का पेज फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, ट्विटर में भी है एंड यूट्यूब में भी है। तो जो लोग जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस हर जगह आप लोग फॉलो करें। अब मैं ये कंपल्सरी नहीं करूंगा कि आप फेसबुक पे ना फेसबुक अकाउंट का देन फॉलो हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू आर इन सोशल मीडिया काइंडली फॉलो, बिकॉज इससे हमारी अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी एंड हमारा रीच होगा। और कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी इमेजेस या कुछ पोस्टर्स शेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या फिर ओरिएंटेशन की अभी शेयर हुई थी, काइंडली अपने स्टेटस पे शेयर करा करिए ताकि ज्यादा उसका एनएसएस की एंगेजमेंट बनी रहे। फिर मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्रोफेशन, डोंट फॉरवर्ड द ग्रुप मैसेजेस टू आउटसाइडर्स। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने ये देखा है फ्रेशर्स नॉट प्रीवियस वॉलंटियर्स कि आप जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में, जो एनएसएस के वॉलंटियर अभी बने भी नहीं है, उनको वो लोग लिंक फॉरवर्ड कर दे रहे हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, उनके थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा मैसेजेस आता है जो सिर्फ वॉलंटियर्स को पता होने चाहिए, वो लोग बाकी अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द ग्रुप। फिर ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ड्यूरिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इवेंट्स। तो ऑफलाइन इवेंट्स में बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग ऑफलाइन इवेंट्स में आ रहे हैं, एंजॉयमेंट इज अनदर थिंग, बट इफ लाइक दे talk in very bad manner or they disrespect someone, चाहे वो कोई volunteer ही क्यों ना हो या फिर कोई post holder ही क्यों ना हो, so they have to behave in professional manner. Ma'am, will you be here? So next up we came up with this initiative volunteer of the month। ये हम लोगों ने अभी फिलहाल में ही लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जो मोस्ट एक्टिव और जो इंथुसियास्टिक वॉलंटियर्स होते हैं उन्हें हम चूज करते हैं वो वॉलंटियर ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल जुलाई में किसी ने बहुत अच्छे से पूरे इवेंट्स में काम करा, इवेंट्स में आए, अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, इन्वॉल्वमेंट दिखाया, डिसिप्लिन रहे, सो वी ऑलवेज ऑब्जर्व देम। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर आप लोग इवेंट्स करा रहे हैं तो वी आई एम ऑब्वियसली ऑब्जर्व एवरीवन हाउ दे आर बिहेविंग विद अस और हाउ दे आर रिएक्टिंग इन द इवेंट्स, वी कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड द फर्स्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई गेस, हाँ, विष्णु झा न्यू ही नाइड हुआ एंड ही वाज सिलेक्टेड एज द वॉलंटियर ऑफ द मंथ। एंड नेक्स्ट पल्लवी सिंह, शी इज इवन हियर विद अस। तो और एक चीज है कि ये वॉलंटियर का मंथ ये हर मंथ का होगा एंड ये अभी आप लोग एनएसएस वॉलंटियर बन चुके हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं इफ यू वर्क विद योर अटमोस्ट डेडिकेशन। एंड जो जितने भी वॉलंटियर ऑफ द मंथ चूज किए जाएंगे, जब हमारा सेशन एंड होगा उसके लास्ट में एक वॉलंटियर ऑफ द ईयर चूज किया जाएगा, जिन्हें हार्ड कॉपी और सर्टिफिकेट मिलेगा साइन बाय द प्रिंसिपल सर एंड प्रोग्राम ऑफिसर मीनाक्षी चौधरी मैम। सो दिस सर्टिफिकेट एक आपका बोनस सर्टिफिकेट समझ लीजिए जो आपको रियली बहुत हेल्प करेगा। इफ आपके पास कॉलेज सर्टिफिकेट आ जाता है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आ जाता है, वर्क डायरी आ जाता है एंड प्लस दिस सर्टिफिकेट, आई होप से आपके में बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा, बिकॉज एनएसएस खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो दिस वाज अबाउट द वॉलंटियर ऑफ द मंथ। एंड आपने मुझसे मिल लिया, मेहर से मिल लिया, लेकिन वन पर्सन इज मिसिंग व्हिच इज आलिया, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है। वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई इन दिस लाइव टेलीकास्ट बिकॉज शी इज नॉट इन दिल्ली एंड वो कुछ रीजन से आ भी नहीं पाई। सो हियर इज अ वीडियो, काइंडली हैव अ लुक। Good morning everyone. Myself Alia Asif, Vice President of National Service Scheme, Sri Aurobindo College, and I extend my heartiest welcome to all the newly selected volunteers for becoming a part of our growing team. And sadly, I could not join you all today due to some personal reason, and I really look forward to work with you all and to meet you all in further events. Together we shall work and take NSS to new heights. So all the best. Thank you. So this was about all the NSS orientation and PPT. I hope आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है, लाइव ओरिएंटेशन जब खत्म हो जाएगा यू कैन मैसेज अस। एंड ऑल्सो जिन्होंने लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, ये लाइव वीडियो सेव हो रही है, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ऑल्सो ये आप लोग जो देख रहे हैं लाइव ओरिएंटेशन, आप लोग स्टेज में से मुझे देख रहे हो, मेहल को देख रहे हो। Also, there are many people sitting at the back bench and helping us in the punching of this orientation.
सो एक बार मैं स्टेज पे सबको एक एक करके बुलाना चाहूंगी, acknowledging them, please. First of all, our technical head Bharat and also Arpit, जिन्होंने अभी just वो करा है. Our anchors, Aman and Soumya. Decoration team Prakshi, Juhi, Himanshi, event managing Pallavi, Javesh, and जो live operate कर रहे हैं, even I want to call them. Shivam, you can also join us. आप लोग इनसे ऑफलाइन इवेंट में मिलोगे, मिल ही लोगे, सबके चेहरे पहचान में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बोलना है, कुछ देखना है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है एनएसएस के बारे में, एनीवन, few lines. Hello everyone. Myself Prakshi Gupta, also head of project PE. तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर. एंड फर्स्ट ईयर में एज यू ऑल नो कि कोविड चल रहा था, बहुत ज्यादा था, सारे इवेंट्स ऑनलाइन हो रहे थे. तो मेरी जब स्टार्टिंग थी तो उस वक्त पे आमिर भैया थे जो प्रेसिडेंट थे, तो वो काफी अच्छे थे. पर उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, ऑफलाइन हो रहे थे, पर इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे थे. तो आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं कहाँ पे आ गई, लाइक मेरा मन नहीं लग रहा था एनएसएस में, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे थे इवन, बिकॉज एज इट वाज द फर्स्ट ईयर आई वाज फीलिंग लाइक अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक. सो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था. आई वाज फीलिंग लाइक कि मेरे को बैक आउट कर लेना चाहिए, मुझे एनएसएस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए. इवेंट्स में मैं इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी इतनी अच्छी जगह बना ही नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था. But then I feel like you know I should stay there because धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था. फिर उसके बाद हमने काफी इवेंट्स करे. देन जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मैं इंटरव्यू दिया एंड मुझे पोस्ट मिल गई वीहीट की, जो प्रोजेक्ट है हमारा. तो ऑल वाज गोइंग गुड. देन आई मेट पूजा दी, मेहर दी, सबसे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, काफी अच्छे है, लाइक आपकी हर स्टेप में आपकी हेल्प करते हैं. जो भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन go to them and you know they can help us. और बस ये था मेरी जो जर्नी थी, वो काफी लाइक रोलर कोस्टर थी. स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस एनएसएस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. दैट्स ऑल. थैंक यू. Anyone else? Quick. हेलो एवरीवन, मैं भरत, टेक्निकल हेड ऑफ एनएसएस. तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं टेक्निकल हेड हूँ, तो मैं सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जितनी भी चलती है, जैसे ये पोस्टर्स वगैरह बनते हैं एनएसएस में, जितनी भी पोस्टर्स है और जितनी भी वीडियोस है, ये सब हैंडल करना मेरा काम है और उसको देखना. ठीक है, तो मेरे अंदर काफ़ी सारी एक बड़ी टीम है. तो आप लोग भी नए नए फ्रेशर्स आएंगे, आपकी भी एक स्किल्स होगी, वीडियो स्किल्स होंगी या पोस्टर मेकिंग स्किल्स होगी, डिजाइनिंग स्किल्स होंगी. ठीक है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एनएसएस में जब आप ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो मैं भी आपको उसी लिए इंकरेज करूंगा कि आप लोग उसके लिए नाम दे, प्रेसिडेंट को बताएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है. आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या पोस्टर मेकिंग में आ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप लोग आओगे. ठीक है, बाकी इवेंट्स की मैं बात करूं तो ऑफलाइन इवेंट्स जितने लोग हैं अभी फ्रेशर्स जितने ज्वाइन करते हैं, तो हम देखते हैं जैसे दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अब ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं या कुछ कम होते हैं. ठीक है, हाफ तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव वगैरह होते हैं तो वो जरूर होंगे. तो आप उन सब में आ सकते हो ऑफलाइन इवेंट्स में. बाकी जितने ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, और जैसे काफी लोग अभी दिल्ली में नहीं होंगे, आउट ऑफ द स्टेशन होंगे, तो उन लोगों के लिए भी पार्टिसिपेट करने का तरीका है कि वो वीडियो एडिटिंग वगैरह करके और पोस्टर्स बना के और बाकी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में हेल्प करके या फिर कंटेंट राइटिंग में हेल्प करके आप मदद कर सकते हैं एनएसएस की. ओके, सो दैट्स ऑल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिक्रूटमेंट. आई होप आप सब सिलेक्ट हो सके. आई होप बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. और किसी को कुछ बोलना है? Javesh. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जैविश चौधरी एंड मैं एक प्राउड वॉलंटियर हूँ एनएसएस का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहले सेकंड सेमेस्टर में मैंने ज्वाइन किया. फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था नहीं यार 5 साल है, 5 साल में अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना है. ठीक है, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं करा. नो सोसाइटीज, नो टेट और कुछ भी नहीं. उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा नहीं यार एनएसएस का नाम बहुत सुनने में आ रहा है, नहीं यार ज्वाइन करना है, उसको करना है सोशल सर्विस के लिए. सो फिर मैंने इंटरव्यू दिया. इसमें फिर मैं मतलब इंटरव्यू वगैरह करके क्लियर करके फिर मैं सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन किया.
फिर उसके बाद मैं काफी बड़ा शाय था सबका, फिर मैं टीम से मिला, फिर बहुत मोबिलाइज हुआ मैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा, तब जाकर फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं कुछ मैं कर पाऊंगा जिंदगी में, और थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ है मेरा। सो थैंक्स टू ऑल द टीम एंड ऑल द वॉलंटियर्स ऑफ द एनएसएस। थैंक यू। anyone else? लास्ट किसी को बोलना है? जूही। Hello everyone, my name is Juhi Katara and I'm co-head of BE. So first year of my NSS was, we can say I was active, but for me I was not internally, like I was not in Delhi, so it seemed to me like I was just a member of one society and online events was quite boring for me. Then I started in in third semester when Pooja Di and Mehaldi got appointed as our core team. So from then on, I came to Delhi. I attended events. So first I was like, I didn't used to talk to people. I was introvert kind of people. And when we came for events, like we attended so many events and they all are my friends now, and now I can talk to anyone for hours. So the first point Pooja Di explained, Mehaldi explained, the personality development, that's what happened to me. So I would encourage each and every one of you to join us for offline events as well. Thank you everyone. It was nice having a little take a seat. So this was the experience of few of our volunteers. अगर आप लोग 1 ईयर यहाँ पे काम करते हैं और एनएसएस कुछ टाइम बाद जब हमारा फिर से नेक्स्ट ओरिएंटेशन होगा, मे भी आप लोग स्टेज पे आ रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। तो मैं कुछ भी बातें पीपीटी बताना भूल गई थी, सो मैं यहाँ बताती हूँ। हाँ, जैसे कि ने बताया लास्ट इवेंट काफी ऑनलाइन हुए थे, सिचुएशन भी वैसी थी, और अभी जब हम लोग रिक्रूटमेंट मैं और मेहर तब भी सिचुएशन वैसी ही थी, लेकिन थोड़ा बेटर हुआ था। सो वी ट्राइड कि अब ऑनलाइन इवेंट्स थोड़ा कम करें एंड ऑफलाइन इवेंट्स ज्यादा करें, क्योंकि हम लोग जब तक ऑफलाइन इवेंट्स नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल जो प्रॉब्लम्स है जो भी है हम लोग उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जिस वे में हो रहा है प्रॉपर मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कीपिंग फॉलोइंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स, वी आर ट्राइंग टू मेक द इवेंट्स ऑफलाइन। इवन अभी जो ओरिएंटेशन भी हो रही है, हम लोगों ने वी आर देयर नो ऑडियंस, वी आप लोग सब ऑडियंस लाइव ही देख रहे हो, जो लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं इस ओरिएंटेशन को फंक्शन होने में, दे आर ओनली हियर एंड दे वर ऑल इन द स्टेज। सो और एक चीज, जैसे कि हम लोगों ने 78 इवेंट्स कंप्लीट किए थे इन 4 months, वी हैव मच मोर टारगेट टू अचीव, नॉट जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इवेंट्स बट बाय सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। तो अगर अभी आप लोग रिक्रूट हुए हो तो वी वांट कि आप लोग अपना इतना पार्टिसिपेशन दिखाओ कि हम लोग और भी ज्यादा माइलस्टोन्स अचीव कर पाए। एंड जो ये इवेंट्स पॉसिबल हुआ है, ऑफ कोर्स द होल टीम, द वॉलंटियर्स क्योंकि आते हैं इवेंट्स में तभी इवेंट्स पॉसिबल होता है। ऑल्सो आई वुड कॉल लाइक थैंक माय बैकबोन इवन मेहर सिन्हा, शी इज ऑलवेज विद मी। जब भी आप कॉलेज देखोगे मैं और आपको मेहर साथ में ही दिखेगी। एंड आर्नेट ऑनलाइन काफी हेल्प करती है, लाइक वो यहाँ आ नहीं पाती लेकिन ऑनलाइन वो इक्वली हेल्प करती है। So I have a great core team and that's why we are able to and great volunteers, जिसकी वजह से हम लोग इतने इवेंट्स कर पाए हैं, और आगे आप लोग के सपोर्ट से अभी और आगे इवेंट्स कर पाएंगे। ऑल्सो अभी हम लोग कलेक्शन एंड डोनेशन ड्राइव कराने वाले हैं, जो अभी आप लोग का हस्बैंड बताया था कि ओरिएंटेशन के बाद इवेंट शुरू हो जाएंगे। सो आज से ओरिएंटेशन खत्म होता है आप लोग का, सो अभी वो 2-3 दिन बाद आई गेस 10th होगी जब हम लोग कलेक्शन डोनेशन ड्राइव शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग जो ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो हम लोग रेलवे स्टेशन जाके आप पुअर पीपल को बांटेंगे, ताकि जिनके पास ओढ़ने को कंबल ना हो या फिर ठंड लगी है, जो भी इश्यूज हो, हम लोग जाके ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड हमारी मीनाक्षी मैम जो प्रोग्राम ऑफिसर है वो भी वहाँ रहेगी। मीनाक्षी मैम हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है, वो सपोर्ट करती है, हमें कोई भी दिक्कत हो वो हमारे साथ हमेशा रहती है। और ऑफ कोर्स our NSS टीचर कोऑर्डिनेटर्स दे ऑलवेज सपोर्ट अस एंड गाइड अस। सो यस, हमारे टीम का फंक्शनिंग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे टीचर्स, कोर टीम काफी अच्छा है। एंड देन लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारा अगर कोई पूछे कि हम लोग इस साल में क्या अचीव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं,
तो हमारा बेसिक यही है कि हम लोगों ने कैसे ऑनलाइन को रखते हुए ऑफलाइन भी करा रहे हैं, कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड। सो ये हमारा था एंड आई गेस काफी पॉइंट्स सब कवर हो गई है। So that was all. Now I would like to hand over the mic to the anchors. Thank you so much, Ms. Pooja Kumari and Ms. Mahal Sinha. Well, this presentation was so attractive. I hope that this presentation has given you a much clearer understanding of our NSS unit. Life doesn't require that we be the best. It only requires that we try our best. So volunteers, try your best on whatever you want to do for our community, for our society and for yourself. With this, I would like to thank all of you to be part of this orientation. I would like to be grateful to the people who work hard to make this event happen, even after such difficulties. Our decoration team, our technical team, our discipline team, and our event management team. I also like to thank Ms. Pooja Kumari and Ms. Mahal Sinha for giving this opportunity to be the host of this event. And at last, I would like to thank and congratulate to all the newly recruited NSS volunteers. I thank you all individuals who directly and indirectly involved to take on the completion of the work beyond their comfort zone. तो आइए सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ में अपने श्रम की समिधा, धैर्य की धूप, अध्ययन की आहुति और लक्ष्य की लौ से अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प करते हैं। To sum up, I believe that any function is incomplete without the national anthem. So I ask you all to direct your attention and stand straight in your respective position for the honor of our national anthem. भरत एक मिनट नेट यूट्यूब नेट किससे चल रहा है? पल्लवी कनेक्ट हो रहा है। ओपन कर दो। There are some technical glitches. Please bear with us for 5 more minutes. ट्राई हो गया। Stand straight for national anthem. Good morning, everyone. मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। You all may take your seats now. Once again, thank you so much for your patience and valuable time. We wish you a very happiness, prosperity and peace. The orientation ends here. Thank you so much.